जैसे कि आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में पूरा सुन लिया है कि पूरा हमारा वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, तो देखिए yes, it's very true कि we have a lot of students, a lot of persons who are not lesser than anybody, but because they have a fear of while speaking, ठीक है, they are good in understanding the things, they understand whatever is written in the newspaper or in the books, etc, etc. Whereas if some teacher or someone is teaching them in English or speaking with them in English, they understand the things, understanding part is okay with them, but the all fear arise or surround regarding the speaking part. Okay, they are not vocal much, or they are have a fear of image degradation. They feels ki if I will speak, I will speak the wrong thing. Okay, or maybe some grammatical error, or I don't know this word what it is said to be in English. Okay, it happens with everyone, and at many places it happens, but we are not vocal to this particular thing even. Okay, we are not even vocal to the communication thing, and even we are facing this issue, we are not able to tell somebody. Okay, so let us counter this particular question only. How what are the myths around surrounding all this issue, and what are the solution even? Okay, if you are in this particular type of a situation where you have all the things of understanding capability, but you are not vocal. Okay, so this video is for all of you who are facing such a issue, so stay tuned for the coming thing. Okay, देखो सबसे पहले तो we have some myths regarding the language. Okay, let us clear the myths regarding this. The first myth is people start thinking कि I am inferior to someone, inferior to in comparison basically, that someone who is speaking in English and I who is not speaking English, or I am not comfortable with particular any language, so people start thinking कि I am inferior, मेरे में ही कुछ कमी होगी. It's not like that. This is a myth. You might be good in something else, the another person is good in something else. It's just the small difference. Okay, the another thing is, even we judge the criteria of intelligence कि whether that particular person is intelligent or not, or if someone is speaking so fluent English or so fluent in particular language, and you gave a tag to them, अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, मुझसे भी बहुत आता है इसे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इट्स नेवर द थिंग कि इफ समवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश ही और शी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, सो इट्स द सेकेंड मिथ. ओके, देन द थर्ड मिथ इज, देखो ये जो बोलना है, हमें किसी भी लैंग्वेज में बोलना है, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम. ओके, इट विल नॉट टेल कि हु इज गुड, हु इज इंफीरियर, हु इज मोर इंटेलिजेंट, हु इज नॉट लेस इंटेलिजेंट. नो, लैंग्वेज एक छोटा सा, अगर आप समझो हम इंडिया में रहते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो क्यों आप इतना इंफीरियर, क्यों आप किसी और को जो इंग्लिश में बोल रहे हो उसको एक टैग उपाधि दे रहे हो कि ही इज़ मोर इंटेलिजेंट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, इवन जस्ट अ लैंग्वेज इज जस्ट टू कम्युनिकेट. ठीक है, आप टूटी फूटी कैसी भी लैंग्वेज कोई बोल रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू कन्वे योर मैसेज, दैट्स फाइन. ठीक है, that is more important to convey your message rather than command on your particular language. ठीक है, ये एक particular myth है. इसके अलावा sometime it is seen कि people speak in English to impress someone. Okay, जहाँ पर भी they think कि they have to impress someone, दे स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ठीक है, चाहे कैसे भी बोलेंगे, बट दे स्टार्ट. ठीक है, और इम्प्रेशन के चक्कर में जो एक एंजाइटी लेवल होता है हमारा, कि दैट इंक्रीजेस. ओके, एंड एंजाइटी इंक्रीजेस, तो वी बिकम मोर फंबल. ठीक है, फिर और अटकते हैं हम बोलते वक्त, है ना, क्योंकि डर है, कभी गलत ना बोलते, कभी गलत ना बोलते. ओके, वो डर फिर सच में बदल जाता है. क्यों? हम दूसरे को इम्प्रेस कर रहे हैं, हम अपना मैसेज कन्वे नहीं करना है. आवर मेन एम इज टू इम्प्रेस, कि देखो मुझे कितनी फराटेदार इंग्लिश आती है. इट्स लाइक दैट. ओके, सो हेयर ऑल्सो द नेक्स्ट फेलियर लाइज. ठीक है, ये तो कुछ मिथ्स हैं. ये मिथ्स क्या हैं कि आपको इनको छोड़कर चलना है. ये जो भी आपके अगर ऐसे विचार हों तो उनको यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए आगे सुनने से पहले. ठीक है, ना तो इंफीरियरिटी की फीलिंग लानी है. कोई बोल रहा है, इट्स ओके, यू कैन ऑल्सो स्पीक इन समथिंग एल्स.
ठीक है, इंटेलिजेंट वाला टैग मत देना किसी को, आराम से सुनो। हिंदी वाला भी लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनके पास भी बहुत, जैसे अभी पढ़ाई की बात करूं, इवन हिंदी वाले जो बैक मीडियम वाले हैं, दे आर अफर्टिंग मोर इन समथिंग। जैसे आपको मे बी थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है, आपके पास इजीली मटेरियल अवेलेबल है, वेर एज इफ यू सी एनी हिंदी मीडियम एंड यू टॉक टू देम, they are doing more efforts than you to grab the knowledge, to grab the current affairs, to grab the etc notes etc etc। ओके, तो वो तो और मेहनत करते हैं, एंड देन दे आर रीचिंग टू अ सर्टेन प्लेटफॉर्म। तो उन्हें ज्ञान ऐसा नहीं है कि दे हैव अ स्मॉल ज्ञान, नो, दे हैव ज्ञान का होल भंडार, इट्स लाइक दैट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यस, आई एडमिट दिस कि हाँ, जो मैंने आपको ये बोला कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, बट हाँ, आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई एडमिट टू कि now time we need English also to communicate, because if even we are selected in some post, then where there we have to write some letters, maybe there might be some application will be coming from some departments or something like that, so वहाँ पर we can't say कि I don't know English, or I can't say this कि I'm not able to understand or I'm not able to speak, where for example you are representing our whole country, ऐसा वाला situation आ जाए तो उसमें हाँ, I understand, even in our college schools also, yes, English is important। ठीक है, तो मैं इसके भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, हाँ, मिथ्स दूर करना बहुत ज़रूरी था। ओके, एंड वन मोर थिंग, जस्ट फॉर अ मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सी इट्स नॉट लाइक दैट कि वी इंडियंस आर ओनली स्पीकिंग द बैड पार्ट, और वी आर नॉट स्पीकिंग इन अ गुड मैनर, ग्रामेटिकल एरर एंड एल्स। ठीक है, आप अगर दूसरे कंट्रीज के फॉरेनर्स को सुनेंगे कभी इंग्लिश बोलते हुए, एवरी वन एसेंट जो होता है, द वे दे स्पीक विद द एसेंट, दैट इज डिफरेंट। ओके, वी स्पीक द वर्ड differently, whereas they are speaking the word differently। ठीक है, even we say ना कि foreigners को तो बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, still see there are many countries who don't know English। ठीक है, तो इंग्लिश का कुछ ऐसा नहीं है, जैसे चाइना में आप जाइए, वहाँ पर you will see very few speakers of English, they have their own language and they are very proud of that language। ठीक है, तो इंडिया में ही है ऐसा कि हमारे पास वी आर डीलिंग इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड एंड इंग्लिश इज़ मोर हैवियर ऑन आर मातृभाषा हिंदी, सो ये इंडिया में है। देखिए, दूसरा, उनको कोई जज भी नहीं करता, इफ़ दे आर डूइंग अ lot of grammatical errors, then nobody talk about that, और उसको इग्नोर कर दिया जाता है, यूजुअली दिस इज ऑल्सो सीन। एंड इवन फॉरेनर्स को आप कभी जज नहीं करोगे ये कहते हुए कि भाई दे आर नॉट करेक्ट और दे आर रॉन्ग, यू विल से ये फॉरेनर है, इसको तो आता ही होगा, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नो, बट समटाइम दे स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रॉन्ग, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्टली टू आर सॉल्यूशंस कि व्हाट आर द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, भाई ये प्रॉब्लम है, ये बोलने में दिक्कत आ रही है, वोकल इशू है, ये वो। अब बात करते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है, कि हाउ टू इम्प्रूव इट। ठीक है, द फर्स्ट सॉल्यूशन इज स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, इट्स हाईली रिक्वायर्ड। अब बोलते वक्त बच्चों को इशू आएगा या किसी को भी इशू आएगा कि यार कभी रॉन्ग ना बोल दूँ, अगर आप इस डर से रुके रहे ना, सो चांस ही चला जाएगा, पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा जहाँ आपको बोलना है। ओके, वेदर यू आर स्पीकिंग इन राइट और रॉन्ग वे, जस्ट स्पीक अप, दैट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि हम गलती करने से ही सीखते हैं। व्हेन वी आर, फॉर एग्जांपल, we are learning the driving, okay, so we will fall once, we will fall twice, then the third we will not fall, we will learn how to drive, same with every point। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे हिंदी कविताएं भी होती हैं कि चींटी के ऊपर, कि चींटी बार बार एक दीवार पर चढ़ रही है, एंड शी इज अगेन 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 फॉलिंग, एंड देन शी इज ट्राइंग अगेन एंड अगेन, है ना, तो एक दिन वो चढ़ ही जाएगी ना पूरा। ऐसे ही सेम विद द लैंग्वेज, सेम विद एनीथिंग, वट एवर यू आर डूइंग, यू विल ट्राई, देन ओनली यू विल लर्न ना। सो उससे क्यों हेजिटेशन कर रहे हो, चाहे गलत बोलो, ये एक बहुत बड़ा होता है कि लोग हंसेंगे। ठीक है, सो मेरा तो लाइफ का सिंपल फंडा है, आई एम शेयरिंग विद यू ऑल्सो, इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है, और लोग अगर हम पर हंस रहे हैं, हम कुछ डाउट पूछ रहे हैं, हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, समवन इज लाफिंग, जस्ट थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग कि आई एम अ गुड पर्सन, कि आई एम मेकिंग समवन टू स्माइल, आई एम मेकिंग समवन टू लाफ। ठीक है, रुलाना बहुत इजी होता है, बट हंसाना इज़ नॉट दैट इजी। ठीक है, सिंपल सा ये सोचो, अपने मन को दुखी मत करो कि अरे कोई मेरे पे हंस रहा है, मेरी बेइज्जती होगी। अरे आपको ऐसे क्यों ही सोचना, क्या ही हमारी इज्जत है वो वाला, आप ऐसे सोचो तो,
है ना, वी आर जस्ट अ स्मॉल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वैसे आप पर्सपेक्टिव से सोचोगे लाइफ बहुत ईजी सा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट थिंक पर्टिकुलर दिस थिंग, आई विल स्पीक, आई विल ट्राई, बिकॉज वंस आई विल ट्राई, ओके, मे बी फर्स्ट टाइम आई विल स्पीक रॉन्ग, सेकेंड टाइम आई विल स्पीक रॉन्ग, लेकिन गलतियों से ही सीखोगे, ठीक है। सो जब गलतियां ही सिखा रही हैं, तो व्हाई नॉट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग रॉन्ग, डजंट मैटर वेदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, राइट। क्या पता सामने वाला, सुनने वाला अच्छा इंसान हो, ही विल मेक यू करेक्ट कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, वेरी पोलाइटली। अब अगला भी एरोगेंट दिखा रहा है, तो उसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं है, ठीक है। अगर वो आपका मजाक उड़ा रहा है, तो उसकी गलती है, आपकी नहीं है, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप उसको बल्कि और फिर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। कोई हंसता है ना हम पर, तो हमें लगता है अरे यार हंस क्या, ठीक है। एक तो आप ये करके ओवरकम कर सकते हो कि भाई कोई बात नहीं, मैंने किसी के चेहरे पर स्माइल लाया। दूसरा आप ये सोच सकते हो, ठीक है आज इसके दिन है, ही इज़ लाफिंग और शी इज़ लाफिंग, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, ठीक है। ये एक चैलेंज भी बहुत अच्छा मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ग्रैब दैट पर्टिकुलर थिंग, तो बोलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इज़ हाउ टू इम्प्रूव दैट इज़ यू कैन रीड मोर एंड मोर टेक्स्ट, ठीक है। जितना आप इंग्लिश में कंटेंट पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। और न्यूज़पेपर तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, ठीक है। इवन इससे आपकी और चीज़ें भी, सराउंडिंग की नॉलेज भी इंप्रूव होगी, और न्यूज़पेपर तो बहुत हेल्प करता है, ठीक है, आपको समझने में। जैसे कोई चीज़, कोई इशू चल रहा है, ठीक है, आपको किसी को एक्सप्लेन करना, आपको नहीं पता उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप अखबार के पहले अक्षर पढ़िए, पहला पेज पढ़िए, उसमें उन्होंने लिख रखा होगा इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल हम किसी को भीख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सो वी डोंट नो कि हमने उसको, बैगर को हमने कुछ दिया, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे मैं रिसेंट एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई ऑल्सो डोंट नो, जस्ट फ्यू डेज बैक, ठीक है। सो आई वॉज रीडिंग सम नोट्स, देयर आई गॉट टू नो, ओके, दे आर कॉल्ड एल्म्स, ओके। देन देर वॉज अनदर वर्ड की बैगर को, अगर आपको किसी मार्जिनलाइज पर्सन को एक्सप्लेन करना है, सो व्हाट यू कैन यूज द वर्ड, सो ओके, सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड, destitution, like this. So you will learn by the words, learn by the things you are reading, like this, okay. तो पढ़कर ही समझ में आएगा, पढ़कर ही याद आएगा, और ऑटोमेटिकली आपकी वोकेबलरी स्किल में वो एक और वर्ड ऐड हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत ज़्यादा ये पराली का इशू चल रहा था, फॉर एग्जांपल पीछे, ठीक है, बहुतों को नहीं पता पराली क्या होती है, ठीक है। तो वंस इन द न्यूज़पेपर ओनली दे आर राइटिंग, न्यूज़पेपर और एनी टेक्स्ट यू आर रीडिंग, तो वहीं पर लिखा था उसको स्टबल बोलते हैं, ठीक है। पराली से हमें पता लग गया उसको स्टबल बोलते हैं। तो न्यूज़पेपर से आपको करंट जो इशू चल रहा हो उस पर आपको कहीं एक्सप्लेन करना हो, कुछ बोलना हो, तो वो न्यूज़पेपर से बेस्ट है, बेस्ट आइडिया टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग। देन द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज यू लिसन द सॉन्ग्स, यू कैन डू लाइक दिस, लिसन द न्यूज़, डिबेट्स, ऑडियोज, एनीथिंग वट एवर यू गेट इन इंग्लिश ना, उसको सुनना शुरू करिए, ठीक है। आराम से आप जब सुनोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर स्पीकिंग, हाउ दे आर बेसिकली प्रोनाउंसिंग समथिंग, ठीक है। तो उससे ही हम सीखेंगे, ठीक है। फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए। अब बोलेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा भी डर हो कि मुझे सीधा किसी इंसान के आगे नहीं बोलना, यू कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर and start speaking to yourself. I do this a lot of time when I have to give interview somewhere, something like that, I used to, ठीक है। शीशा नहीं भी है, I just sit and I just बोलते जाएंगे ऐसे, ठीक है। उसी से सीखते हैं, ठीक है। कोई अलग से ज्ञान ही नहीं है कि हाँ ठीक है आपके पास बैकग्राउंड नहीं था पहले, फैमिली में नहीं बोलते थे, ऐसा, दे आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स ऑल द थिंग्स, ठीक है। आप चाहें तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। चाहें, और सीखेंगे कैसे, इसी से सीखेंगे। बोलेंगे, गलत बोलेंगे, मिरर के आगे बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ेंगे जो इंग्लिश में लिखा है, समझेंगे कि अक्षरों को क्या कहते हैं, इस वाले मीनिंग को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उससे समझेंगे। दूसरा हमें और प्रोनाउंसिएशन भी बेटर करना है, तो हम सुनेंगे, ठीक है, जब भी फ्री होगा। अब ये नहीं है कि स्पेशल कोई है, यार बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि दे आर जॉइनिंग स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स, ठीक है। वो आराम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, उन्हें खुद नहीं आती है अच्छे से, वो एक किताब ग्रामर ये वो रख देंगे आगे, वो फ़र्क ही नहीं करेगा, वो इतना बेनिफिट ही नहीं करता है, क्योंकि हमें बोलनी तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ग्रामेटिकल थोड़ी बताना है वहाँ पर। ग्रामेटिकल भी अपने आप ही आ जाता है जब आप ये सीख जाते हैं, ठीक है। गलत बोलेंगे चाहे बेशक, तो सही भी बोलेंगे एक समय आएगा,
ठीक है, उसी से सीखेंगे आप, अपनी गलती से सीखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू कैन डू द नेक्स्ट, यू कैन मेक अ नोटबुक, ठीक है। या इवन मैंने क्या कर रखा था कि जो मेरी नोटबुक है करंट अफेयर्स का, उसी की जस्ट लास्ट के 5-10 पेजेस आई हैव डिवोटेड स्पेशली टू द डिक्शनरी पार्ट और वोकैबुलरी पार्ट। वट एवर न्यू वर्ड आई फाइंड इन द न्यूज़पेपर और समवेयर, आई जस्ट राइट द वर्ड plus in front of that I write the meaning, maybe in Hindi or maybe in English, I write the meaning in easy terms, okay. Then next day I'm adding more 5 words into that list. So first I will revise the old words जो मैंने पहले लिखे थे, उन words को मैं use भी करूँगी। जैसे अब कभी मैं कुछ बोल रही हूँ, for example even I have seen some people who are putting that as in status, ठीक है, अपना status डाल देते, कोई नया word पढ़ा है, skeptical एक मैंने word पढ़ा है for example, okay. So मुझे आज ही पता लगा skeptical क्या होता है for example. So I have written that word, maybe I will write some quote on my WhatsApp status today only, ठीक है, तो उसमें मैं ये word का यूज़ करूँगी, तो उससे याद भी रहेगा, किसी एक मेमोरी जुड़ गई, तो मुझे नेक्स्ट टाइम whenever I will be thinking of the word I will think of this, हाँ मैंने स्टेटस लगाया था, फिर मेरी इस वाली फ्रेंड ने कमेंट किया था, ऐसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। People do like this, okay, I know some of them who have did like this, ठीक है। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स, मम्मी के साथ, पापा, अरे वो बहुत खुश होते हैं सुनने में, ठीक है, जब आप उनके साथ बातें करोगे या ऐसे, दे विल बी रेडी टू लर्न, ठीक है। इवन आर फैमिली ऑल्सो, इफ़ यू सी, इफ़ योर मदर एंड फादर आर नॉट एजुकेटेड मच, यू विल सी कि जब वो देखते हैं अब यूट्यूब से या कहीं से भी, जब आपसे ही सुनते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स, तो उन्होंने भी तो लर्न किया है ना सुन सुन कर, तो आप भी ऐसे ही करना है आपको भी, ठीक है। नोटबुक में जैसे ही न्यू वर्ड ऐड कर रहे हैं, पुराने रिवाइज कर रहे हैं और फिर न्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कॉपी भरती चली जाएगी, रिवाइज बाद में छोड़ दिया ना, तो बस वो आपने लिख दिया, एक डिक्शनरी बना दिया है, लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया है, देन इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़, ठीक है। उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ना वर्ड्स को, चाहे आप 2 वर्ड लिखो यार एक दिन में, लेकिन उनको नेक्स्ट डे जब 2 और ऐड कर रहे हो तो पिछले 2 रिवाइज कर लो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी, ठीक है। आप डेली ये एक्टिविटी करना है, ये नहीं कि एक हफ्ते में कर लिया और फिर आप यू आर जजिंग, यार मुझे तो इंग्लिश बोलनी आई नहीं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे धीरे आएगी, चेंजेस आपको एक हफ्ते में ही दिख जाएंगे। एक हफ्ता अगर आप ये फॉलो कर रहे हो ना, कोई एक बात पढ़ रहे हो, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, रोज सुन रहे हो डिबेट, चेंजेस आपको 1 वीक में दिख जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो ये नहीं है छोड़ ही देना है, रिजल्ट दिख जाएगा, एक हफ्ते में दिख जाएगा रिजल्ट, इफ़ यू आर डूइंग वेल, ठीक है। और उसी को आपको कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, okay. In the last what you can do the next, this is a very good practice, a lot of professors have suggested this, जब भी कभी बात होती है इस टॉपिक पे, और ये बहुत मुझे अच्छा भी लगा और इफेक्टिव भी लगा है। रोज क्या करो ना, एक डायरी लिखो। डायरी क्या होता है, एक कॉपी बना लो या फिर कोई पेजेस लिख लो, एंड उस पर आप डेली आप क्या करो, आप लिखो कि पूरे दिन में आपका जो भी हुआ, सॉरी फॉर द साउंड, ओके। सो आप क्या करेंगे कि यू विल राइट द डायरी डेली, ठीक है। मतलब पूरे दिन में क्या हुआ उसको इंग्लिश में लिखना है, किसी को दिखाना थोड़ी है, टीचर से चेक थोड़ी कराना है, ठीक है। तो कैसे भी गलत सलत कुछ भी लिखो, बट लिखो, लेकिन लिखो इंग्लिश में, ठीक है। तब तुम रियलाइज़ करोगे कि कई वर्ड्स ऐसे आएंगे कि तुम्हें ऐसे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुरंत गूगल पे सर्च करो, ठीक है। अब ये नहीं है कि 2-2 पेज की तुम्हें पूरी ग्रंथ लिखनी है, नो, ठीक है। जस्ट राइट अ स्मॉल वन, अगर तुम्हारा टाइम है तो लिखो 2 पेज का। आई एम जस्ट टेलिंग टू देम जिसको टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपका कॉलेज भी खुल गया होगा, इतना समय नहीं मिलता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक आधा पेज तो लिख सकते हो, ठीक है। डेली लिखो, मंडे टू सैटरडे आप आराम से लिखो, और संडे को क्या करो ना, संडे को पढ़ो मैंने क्या लिखा मंडे से सैटरडे, ठीक है। एक वीक ऐसा करोगे, दूसरा वीक ऐसा करोगे, देखना जब तुम पुराने अपना पढ़ोगे ना, तुम्हें खुद लगेगा, कभी कभी तो ऐसा लगेगा अरे ये मैंने लिखा है, पहली फीलिंग आएगी, दूसरी फीलिंग ये आएगी यहाँ पर ये नहीं ये आना था, ऐसे यू विल मेक योर सेल्फ करेक्ट, खुद ही खुद का करेक्शन करोगे, किसी टीचिंग कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी और का गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद का टीचर खुद हो, okay. So what is the thing, you have to write a diary daily, means a small note, whatever you did in the whole day, okay. In a summarized way, it was a very boring day, it was a very good day, ठीक है। I did this, I have went to some particular place, I enjoyed there, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इससे बहुत improvement आएगी, I am telling you, ठीक है।
And then the last, I will not demotivate and then I will say like this only, language को इतना हावी मत होने दो कि वो तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी कैपेबिलिटी को जज करे. इट्स जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट. ओके, बट हाँ, आपको लर्न करना ज़रूरी है. आई कैन अंडरस्टैंड इन दिस चैलेंजिंग वर्ल्ड यू हैव टू डू बिकॉज यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. हाँ, मैं जैसे अपना एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा है. देखो, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूँ. इवन स्टिल आई एम लर्निंग. फर्स्ट ऑफ दिस थिंग, आई एम नॉट एक्सपर्ट एट ऑल. आई एम स्टिल ऑन माई लर्निंग फेज. आई स्टिल लर्न द इंग्लिश, आई स्टिल लर्न द कंसेप्ट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई एम इन अ लर्निंग फेज. और हर कोई एक हमेशा लर्निंग फेज में रहता है. ठीक है. अगर आप उस एरोगेंस और ईगो के साथ जियोगे, सब आ गया, एक्सपर्ट बन गए, धुरंधर बन गए, कभी कोई नहीं बनता है. आपसे भी ज़्यादा कोई और है. ठीक है. जस्ट पोलाइटली खुश रहो जितना हुआ, और लर्न करने का कोशिश करो. दिस इज़ द मेन फंडा. ठीक है. जैसे अगर इफ़ आई टेल यू माई ओन एग्जाम्पल इन माई कॉलेज, सो येस, कॉलेज में इफ़ आई रिमेंबर माई डेज इन बी कॉम ऑनर्स, बेसिकली इन माई ग्रेजुएशन, सो आई स्टिल रिमेंबर कि अ लॉट ऑफ टाइम आई फेस दिस इशू. आई एम लाइक फ्रॉम हरियाणा. ओके. एंड हरियाणा में इतना कल्चर नहीं होता है. इवन माई फैमिली में भी ऐसा बिल्कुल भी कल्चर नहीं है. वेयर एज व्हेन आई सॉ इन माई दिल्ली यूनिवर्सिटी इन माई कॉलेज, पीपल आर स्पीकिंग वेरी वेल और दे आर प्रेजेंटिंग देम वेरी वेल. ठीक है. जो समटाइम मुझे भी ये सब इशू आते थे, सब मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया है. बट आई रिग्रेट नाउ, I regret this particular thing कि a lot of time when elections are conducted, for example in my department or in the college, I used to hide myself. I want to speak, but the barrier comes for the English. Okay, I think कि अभी बोलूँगी मैं, अभी just ये लड़की आएगी then I will go. Okay, like that. But ऐसे ऐसे करने में पूरा प्रोग्राम ही निकल जाता था और मैं उस हेजिटेशन में ही रह जाती थी कि ये अक्षर बोलना है, कुछ गलत ना हो जाए. इट्स लाइक दैट. और अब मुझे रिग्रेट होता है कि आई वॉज बेटर देन देम. ठीक है. बट डर क्या था, वो चले गए वहाँ पर बोलने, दे वर वेरी वोकल एंड मैं गई नहीं. ठीक है. तो मुझे बड़ा दुख सा रहता है कि मुझे जाना था यार. एटलीस्ट मैं गलत बोल के आती, बेइज्जती होती, कुछ भी होता, मुझे सीखने को मिलता. ये थोड़ा मैंने लेट रियलाइज़ किया. ठीक है. इन माई ग्रेजुएशन 3rd ईयर, एंड आई एम ओके विद दैट ऑल्सो कि कोई बात नहीं. पहले मेरा साथ ऐसा दिक्कत हुआ बट अब नहीं होने देना. ठीक है. आई नो मुझे बहुत बार ऐसे छुपना पड़ता था, ऐसे वाला सिचुएशन होता था मेरे साथ. तो शायद आपके साथ भी होता हो. तो उस चीज़ से घबराना नहीं है. मत रोको खुद को, बाद में पछतावा होता है. ठीक है. बेझिझक इफ़ यू फील योर सेल्फ कि येस यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, कि तुम अच्छे से संभाल सकते हो, यू हैव दैट लीडरशिप पोटेंशियल और समथिंग लाइक दैट, जस्ट गो एंड बीट एवरीथिंग. ठीक है. चाहे जाकर ट्राई करो, हो जाएगा. सिंपल सा है. ठीक है. और लैंग्वेज का कभी इशू आ रहा हो ना, मुझे अब लगता है कि यार हिंदी में ही बोल देते, जब हमारी मातृभाषा है, किस बात की शर्म थी जब. तो ऐसे वाला. ठीक है. तो ये वाला होता है. दूसरा, इंटरव्यूज़ का भी मैंने बहुत कुछ सीखा इंटरव्यूज़ से भी. ठीक है. कि आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़. तो जब भी इंटरव्यूज़ होता था, आई यूज टू गो नॉट फॉर द सिलेक्शन, फॉर द एक्सपीरियंस आई गो देयर. ठीक है. एक्सपीरियंस के लिए, सिलेक्शन मिले या ना मिले, ठीक है, पहले से सेटिंग हो उनकी, बेशक हो. ठीक है. एक्सपीरियंस तो मिलेगा. ठीक है. फ्रैंकली वहाँ पर जाके बैठो, बोल्ड रहो, बी कॉन्फिडेंट. ओके. स्पीक इन द लैंग्वेज. ठीक है. बहुत बार इवन आई हैव टू चैलेंजेस इन माई लाइफ. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है लाइक इवन राइट नाउ, अभी मैंने लास्ट ईयर एक चैलेंज लिया था जून में. ओके. वेयर आई हैव टू टीच फॉरेनर स्टूडेंट्स. ओके. इवन आई वॉज नॉट गुड एट द टाइम, आई वॉज फम्बलिंग और आई वॉज थिंकिंग यार कैसे होगा एंड एवरीथिंग. आई जस्ट टुक इट. ठीक है. एंड विद टाइम एवरीथिंग पास ऑन. विद टाइम यू लर्न योर सेल्फ, एंड स्टिल आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम देम. ठीक है. when they are speaking, I stay silent. Okay. I listen to them, how they are speaking, what is their accent. Okay. and I learn by them. Okay. I don't tell this particular thing to them obviously, but I just still silent and I watch them. ओके. एंड उसी से मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला है पूरा एक 1 ईयर में, अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजर. ठीक है. तो ऐसे लाइफ में चैलेंजेस आपके आगे हो, मिल रहे हो, जस्ट ग्रैब देम. दे विल चेंज योर होल डेस्टिनी. Okay, they will change the way you think, the way you speak, the way you communicate your things. So this all from my side. And in last I will say, जो भी मैंने ऊपर बताया, बोलो यार, बोलना बहुत ज़रूरी है. just speak and speak, and उसी से आप सीखोगे. a lot of time you will speak the wrong thing, might be, but there will be one day when you will be speaking very well. You will be confident of yourself.
ओके। और वो डेयरी एंट्री वाला प्लीज़ करना, वो बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है, बहुत इफेक्टिव रहता है वो, ठीक है। येस आई नो कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, बीच में छूट जाता है कई दान, मेरे साथ भी होता है, ठीक है, बट ट्राई, कोई बात नहीं, छूट गया क्या हो गया, नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर लो, सिंपल, ओके। एंड न्यूज़पेपर ने तो बहुत हेल्प किया है मेरी जर्नी में, तो आई होप इट विल हेल्प यू ऑल्सो, ओके। एंड इन द लिसनिंग द डिबेट्स, ठीक है, अब वो वाला डिबेट नहीं सुनना आज तक खोल लिया और उनका सुन रहे हो, लड़ाई चल रही है, नहीं, ठीक है। यू कैन हेयर दी this particular channel संसद टीवी, ओके। संसद टीवी में भी a lot of English debates are there, उससे टॉपिक का भी ज्ञान होगा, डिबेट्स भी आप सुनने को मिलेंगी, ठीक है, इंग्लिश में, और दे आर वेरी वेल गुड, ठीक है। आप BBC वगैरह इनका भी सुन सकते हो, बट संसद टीवी इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इंडिया, यू कैन हेयर दैट पर्टिकुलर थिंग एंड इट्स वेरी ऑथेंटिक, ठीक है, तो वो सुन सकते हो आप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल हेयर, ओके। आई होप आई हैव एडेड सम लिटिल वैल्यू टू योर नॉलेज और योर कैलिबर, और आई हैव गिवन यू सम मोटिवेशन फॉर दैट, ठीक है। बिना हेजिटेशन के जस्ट मूव ऑन, यू विल रॉक, ठीक है, आप किसी से कुछ कम नहीं हो, सिंपली, ओके। बाय एवरीवन, थैंक यू।